بندہ ایک بات یاد رکھ، اپنی نسلوں کو بھوکا چھوڑ کے، فقیر چھوڑ کے، مسکین چھوڑ کے، منگتا چھوڑ کے، تہی دست و تہی دامن چھوڑ کے، بھکاری چھوڑ کے نہ جانا۔ میرا بندہ میری بات سن، اپنی نسلوں کو فقیر چھوڑ کے، بھکاری چھوڑ کے، منگتا چھوڑ کے، تہی دست و تہی دامن چھوڑ کے نہ جانا، اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا۔ اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، اس کی اولاد، ذریت۔ آپ کو علم ہے کہ ہر نماز کی التحیات میں آپ اپنی نسلوں کے لیے مانگتے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا مُقِيمَ الصَّلَاةِ مِن ذُرِّيَّتِي۔ ذریت موجودہ نسلوں کے بعد آنے والی نسلیں اور اندیکھی نسلیں ہیں۔ میرے پردادا 1933 میں فوت ہوئے، 19 میں حج کیا، عبادات کی زندگی تھی۔ میں ان کی ذریت ہوں، میری نسلیں ان کی ذریت ہیں، میرے والد ان کی ذریت ہیں، میرے دادا ان کی ذریت ہیں۔ ومن ذریتی۔ نماز کے دوران عمل سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ عمل کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عمل سے پہلے دعائیں، عمل کے درمیان دعائیں، عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عمل کے دوران دعائیں کیا قبول ہوتی ہیں؟ رکوع کی دعا کا اہتمام، دو سجدوں کی دعاؤں کا اہتمام، پھر تراویح کے 2 رکعت، اس کے درمیان کی دعائیں کون سی ہیں؟ 4 رکعت، اس کے درمیان کون سی دعائیں پڑھنی ہیں؟ احادیث میں تراویح کی دعاؤں کا کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ پوری دعا، یہ تعین نہیں ہے۔ تراویح کے 2 وقفے کے دوران کون سی دعائیں، تراویح کے 4 وقفے کے دوران کون سی دعائیں؟ کیونکہ ہم عمل میں ہیں، ہم عمل میں ہیں۔ عمل کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، عمل سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عمل سے پہلے دعائیں، عمل کے درمیان دعائیں، عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا ہم تراویح کے درمیان میں کوئی دعا پڑھتے ہیں، کوئی دعا مانگتے ہیں؟ ہوتے تو چند لمحے ہیں۔ اب ایک لمحہ بتاتا ہوں، غور سے سنیں۔ حدیث میں آتا ہے، سرکار کا فرمان ہے، جب مکبر کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس وقت دل ہی دل میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ اب بتائیں قد قامت الصلاۃ پہ، قد قامت الصلاۃ پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ خود سوچیں، کتنے لمحے لگتے ہیں؟ خود سوچیں۔ اسی طرح 2 تراویح کے درمیان، 2 تراویح کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 2 تراویح کے درمیان دعائیں قبول، تراویح جب 4 ہوتی ہیں اس کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم ان لمحوں کو کیسے کیش کرتے ہیں؟ کیش کر لیں، ایش ہی ایش ہے، پھر ایش ہی ایش ہے۔ سوری فی عیشت راضیہ، ہاں عیشت راضیہ قطوفہا دانیہ کلو واشربو، یہ پھر ایش ہی ایش ہے۔ ان 2 لمحوں کو یاد رکھیں اور ان 2 لمحوں کی قیمت کا احساس کریں۔ ان 2 لمحوں کو یاد کریں، ان 2 لمحوں کی قیمت کا احساس کریں، بہت احساس کریں۔ اور میں جو اپنے اوپر استغفار لازم کر لیتا ہے، استغفار لازم، اس لیے فرمایا میرے حضور عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے تھے، نیکی کے بعد بھی استغفار کرتے تھے، اعمال کے بعد بھی استغفار کرتے تھے۔ میرے حضور عبادات کے بعد، نیکی کے بعد، اعمال کے بعد استغفار کرتے تھے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اعمال اور عبادت کے بعد استغفار کرے۔ آپ 3 دفعہ اگر گڑ گڑا کے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اگر کہہ دیں اور دل ہی دل میں کوئی مراد،
कोई दुआ, कोई अल्लाह के सामने मुनाजात बयान कर दे, दिल ही दिल, दिल ही दिल इस्तिग़फ़ार करें। और बहुत ज्यादा हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास बसरा में, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। एक शख्स आया, कहा दुआ फरमाए बेटे नहीं है, फरमाए इस्तिग़फ़ार कर। एक शख्स आया, दुआ फरमाए बारिशें नहीं, इस्तिग़फ़ार कर। एक शख्स आया, दुआ फरमाए मेरे दरख्तों पे फल नहीं, इस्तिग़फ़ार कर। माल नहीं, इस्तिग़फ़ार कर। जो बंदा जो चीज मांगने आता था, आप फरमाते थे इस्तिग़फ़ार कर। तो आपके खुद्दाम ने पूछा, हजरत ये आप फरमा रहे हैं, इसकी कोई दलील भी है? इसकी कोई दलील भी है? तो आपने वो आयत पढ़ी, कुल कुल तस्तग़फ़िर रब्बकुम इन्नहु युरसिल समा अलैकुम मिदरारा। बारिशें, माल, बेटे, चीजें, नेमतें इस्तिग़फ़ार पे हैं। मैंने ना एक वाक़या देखा, जहाज उतरा, पता नहीं कौन सा किसी मुल्क का एयरपोर्ट था, तो इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, हर मुल्क की फ्लाइटें। एक साहब, उनके पास वो 4 व्हील वाला ब्रीफ केस था, 4 व्हील वाला ब्रीफ केस था। उस ब्रीफ को केस को साथ लेके इस तरह रेडी की तरह चल रहे थे, और रास्ता चाहिए था, वो तेज जा रहे थे, उनकी आगे फ्लाइट होगी, कोई मजबूरी जो भी है। तो पता है क्या लफ्ज कह रहे थे? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मैं कर ले भाई, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, एक्सक्यूज मी, बंदे हट जाते, ऐसे हो जाते। और एक्सक्यूज मी चल रहा है, और वो रास्ते बन रहे हैं। मैं कह वाह भाई वाह, अल्लाह तू सच्चा, तेरा हबीब सच्चा। हमारी जिंदगी के राहें बंद, रुकावटें, रिस्क की, बख्त के, बरकत के, इज्जत के, रिश्तों के, सेहत के, जिंदगी के कोई रुकावटें हैं, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार। और बाज़ औक़ात इस्तिग़फ़ार वो सादत और नेमत है जो इंसान को करना बहुत जरूरी है। मुझे इस वक्त मुल्क के एक बहुत बड़े आदमी हैं, अल्लाह वाले हैं, मुझसे कहने लगे मेरे परदादा के परदादा सब चोर डाकू थे, हमारे बड़े सब चोर डाकू थे, और उनका पेशा यही था। मैं एक जगह गया, याद है मुझे, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरा कह दिया कोई पीर आया हुआ है ऐसे। तो उसने कहा मैं देखूं कौन पीर है। अच्छा, उसके ज़हन में था कोई बहुत मोटा होगा, बहुत ज्यादा, 4 बंदे इधर 4 बंदे इधर। मुझे कहने लगा ना तेरे पास हारमोनियम है, ना तबले हैं, ना कवाली है, ना बंदे, तो कैसा पीर है? मैं कहा इन्होंने कह दिया है, तो इन्होंने कह दिया है, मैं तो मुरीद हूं। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसने तकरीर की, उसने कहा लोगों देखो, चोरी हमारा पेशा है, कोई मसला नहीं, 11वीं का खत्म नहीं छोड़ना, कोई मसला नहीं, चोरी हमारा पेशा है, कोई मसला नहीं है, उसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं चुप करके मैं देख रहा था कि या अल्लाह ये क्या कह रहा। चलो 11वीं का खत्म दे, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, या हर्ज है तुम्हें तो तुम्हें होगा, ये उलमा के मसाइल हैं, मैं तो फकीर हूं, उलमा को ज़ेबा है, वो मसाइल को देखें, मैं तो फकीर आदमी हूं। भाई चोरी वाली कहानी, ये मेरे दिमाग को ऐसे उसने घुमाया। एक्सक्यूज मी जिंदगी में वो चीज है जो इंसान की जिंदगी से ऐसे धूल, राहें, मुश्किलें, परेशानियां हटा देती है। और मैं एक बात कह रहा था कि बाज औकात नहीं जिंदगी में, पता नहीं मेरे पीछे का मेरा बाप, बाप का बाप, वालिद, वालिद का वालिद, उससे कौन सा ऐसा कसूर हुआ कि लानतें, बदबख्तियां, शकावतें मेरा पीछा कर रहे हैं। दुआएं भी ट्रेवल करती हैं, पीछा करती हैं, बददुआएं भी पीछा करती हैं। क्यों कहा? उससे दुआओं का जो छत थी वो हट गई। क्यों कहा? इस खानदान को शायद किसी की दुआ है, इस बंदे को किसी की दुआ है, या इस बंदे के साथ कोई बददुआ पीछा कर रही है। इस्तिग़फ़ार, वो कोई बददुआएं जो पीछा कर रही हैं, वो कोई आहें पीछा कर रही हैं, वो कोई फरियादें पीछा कर रही हैं,
میری اما کی اما، اما کی اما، میری نانی دادی، میرا والد 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 کا والد، اس سے کوئی قصور ہوا، اس سے کوئی غلطی ہوئی، اس سے کوئی خطا ہوئی، اور وہ غلطی خطا کی آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، اس سے میری زندگیاں بند، اس سے میرا رزق بند، اس سے میری راہیں بند، اس سے مشکلات، اس سے پریشانیاں، اس سے ناکامیاں، اس سے الجھنیں، اس سے زندگی میں گناہوں کی راہیں، سچائی کی راہیں نہیں، کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ یہ جو استغفار ہے، استغفار کا کیا معنی ہے؟ استغفار کا کیا معنی؟ ٹرالی والا تھا ہمارے، ایک ٹرالی والا، میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، بڑے بڑے لکڑی کے ٹیمبر نہیں ہوتے، بڑے بڑے، اس کے پاس پرانا روسی ٹریکٹر تھا، بہت پرانا، وہ سڑک کے اس نے درمیان میں چلنا ہے، گاڑیاں آئیں ہارن دیں، اس نے کسی کی نہیں سننی، لوگ آئیں جھگڑا ہو جاتا تھا، مار کٹائی ہو جاتی تھی، تھانے پہنچ کے نا سب سے پہلے قمیض اتارتا تھا اور شلوار اتارنے کی کوشش کرتا تھا، کیوں کہ مجھے مارو۔ وہ پولیس والے کہتے کیا وجہ ہے، کہنے مجھے مارو، اعتراف جرم میں مار سے بچ جاتا تھا، جرم کا اعتراف کر لیا، بھئی ماریں گے تو اس لیے نا کہ تو اپنے جرم کا اعتراف کر، تو قصوروار تھا، گاڑی میں کوئی بڑے بابو صاحب جا رہے تھے، ان کے لیے تو نے گاڑی سڑک سے نیچے نہیں اتاری، اپنی گاڑی یعنی ٹریکٹر جس پہ لکڑی لدی ہوئی تھی، تو نے کیوں نہیں اتاری، اس نے تجھے ہارن دیے، سب کچھ کیا، اس نے جا کے مارنے کے لیے کپڑے اتارے کہ میرے ننگے جسم پہ مارو، میں مجرم ہوں۔ استغفار کہ مولا اس سے پہلے کہ تیری سزائیں، تیری بجلیاں، بربادیاں، ناکامیاں عرشوں سے آسمان دنیا پر اور آسمان دنیا سے کھجور کے درختوں سے نیچے آ جائے، میری معافی ہے، میرا اعتراف ہے، میری توبہ ہے، میرا استغفار ہے۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے، باپ دادا کے باغات ہیں، مالی ہوتے تھے، تو میں نے ان سے خود سنا، کہہ رہے ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، ہر بندے سے کشتی کرتا تھا، کہہ رہے میں تجھے ایسے 1 منٹ میں ڈھا دوں گا، پکڑتا تھا، کشتی کرتا تھا، اور جو دیکھتا تھا نا طاقتور ہے، فوراً نیچے سے ہاتھ کرتا تھا، ساری بس ہے، ہماری بس ہے، بس ہے، اسے پہلے 2-4 رگڑے دے دے گا، ہڈی توڑ دے گا، ہڈی نہ توڑے گا تو کھلڑی تو اتار دے گا، جلد اتار دے گا، رگڑا دے دے گا، اسے فوراً کا ہاتھ اٹھاتا، ہماری بس ہے، ہماری بس ہے، اللہ ہماری بس ہے، ہماری بس۔ 2 رکعتوں کے درمیان، دے تو کاغذ کیا دینا، 2 رکعتوں کے درمیان، 2 رکعتوں کے درمیان، 4 رکعتوں کے درمیان بہت دعائیں ہیں، بہت تسبیحات ہیں، بہت اعمال ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں۔ استغفار، استغفار، اور استغفار ایسی طاقتور دعا ہے، استغفر اللہ العظیم، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر، استغفار۔ پوچھا تو استغفار کرتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، سفر میں رات پڑ گئی، ایک مسجد میں گئے، مسجد والے نے نکال دیا، انہیں وہی نکلو یہاں سے، میں رات یہاں قیام نہیں کر سکتے، اور بہت بے اکرامی سے نکال دیا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کوئی لگتا تو چہرے مورے سے بڑے اللہ والے درویش ہیں، انہیں آپ میرے پاس آ جائیں، اور وہ قدم قدم پہ استغفار کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل، میں بغداد میں ان کی خدمت میں حاضر بھی ہوا، پوچھا کہ تجھے اس استغفار سے کیا ملا؟ اس نے کہ جی کائنات میں جو مانگا سو ملا، بس ایک اب چاہتا ہے کہ احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے، جو چاہا سو ملا، اب ایک آخری چاہت ہے، کہاں بغداد، کہاں وہ ہستی، اور کہاں مجھ جیسا غریب فقیر منگتا بھکاری پردیسی اور گناہگار، اب چاہت ہے امام احمد بن حنبل کی زیارت کر دوں، ملاقات ہو جائے۔ کہا مبارک وہ میں ہوں، تو میں ہوں۔ استغفار۔ رب کو ندامت پسند ہے، زاری پسند ہے، زور پسند نہیں، کیونکہ زور سارا اسی کے پاس ہے، ہاں زور سارا اسی کے پاس ہے، اس کو زاری پسند ہے، اس کو لجاہ قلبی پسند ہے، اس کو التجا پسند ہے، اس کو ندامت پسند ہے۔ نماز کے بعد، 2 رکعتوں کے بعد، تراویح کی 4 کے بعد جو دعائیں پڑھنی ہے پڑھے، لیکن استغفار، استغفار۔
इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार को जिंदगी का हिस्सा बना। इसलिए हमारे तस्बीहाने के सिलसिले की तस्बीहात में एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की है सुबह शाम, एक दरूद पाक की, एक तीसरे कलमी, एक इस्तिग़फ़ार की है। इस्तिग़फ़ार को लाजिम करार दें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह को नदामत पसंद है, अल्लाह को नदामत पसंद है, अल्लाह को नदामत पसंद है, नदामत पसंद है। अल्लाह को जारी पसंद है, जोर पसंद नहीं है। माफी मांगने वाला, रोने वाला, जारी करने वाला, अच्छा रो भी नहीं रहा, माफी बज़ाहिर नहीं मांग रहा। ये जो इस्तिग़फ़ार के बोल हैं, अल्लाह की बारगाह में इन बोलों की बड़ी कीमत है। अल्लाह की बारगाह में इन बोलों की बड़ी कीमत है। उसने कहा मैंने जो जिंदगी में मांगा मिल गया, बस अब अहमद बिन हंबल की मुलाकात हो जाए। जो मांगा मिला, जो मांगा मिला। एक मैं हदीस सुनाता हूं, सरकार का फरमान है, मफहूम है, इंसान की गलतियों और खताओं की वजह से वो गलतियां और खताएं रिस्क के दरवाजे बंद कर देती हैं। ऐसे पत्थरों की तरह दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। रिस्क के, बख्त के, मुकद्दर के, नसीब के, सेहत के, इज्जत के, दौलत के, राहत के, बरकत के, ये दरवाजे बंद हो गए, ये बंद हो गए, ये बंद हो गया। इंसान की जिंदगी तंग हो गई, इंसान का सुकून तंग हो गया, इंसान की राहतें खत्म हो गई। पर मैं जो बंदा फिर इस्तिग़फ़ार को लाजिम करार देता है, इस्तिग़फ़ार उसकी गलतियों और खताओं का मदावा बन जाता है और रिज़्क़, वुसअत, बख्त, बरकत के दरवाजे सारे खुल जाते हैं, सारे खुल जाते हैं। तो इबादत के दरमियान इस्तिग़फ़ार, इबादत के बाद इस्तिग़फ़ार। तो इस्तिग़फ़ार को लाजिम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, इस्तिग़फ़ार को लाजिम अपनी जिंदगी का साथी बना लें, इस्तिग़फ़ार को लाजिम अपनी रूहों और सांसों का हिस्सा बना लें। जितना इस्तिग़फ़ार हमारी जिंदगी में आता जाएगा, शामिल होता जाएगा, उतना हमारी जिंदगी में राहें खुलती जाएंगी। बड़ों की नियत करके, पूरी उम्मत की नियत करके इस्तिग़फ़ार करें, पूरी उम्मत की नियत करके। मुझे एक साहब कहने लगे, हमारे बड़े किसी किस्म का भी माल आता था ले लेते थे, ज़कात का, सदका, चोरी, माल जैसे हैं, हालांकि खुद ज़कात सदका देने वाले थे। जिस किस्म का माल आता था लेते थे और खाते थे। मैंने कहा नुकसान क्या हुआ? कहा हमारे यहाँ नुकसान में मुकदमात, कत्ल, गारत, नशा, बुराइयां, ये जिंदगी में हमारी नस्लों में शामिल है। तो मुझसे कहने लगे कोई हल है? मैंने कहा मेरे पास बेहतरीन हल है, वो है इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार। मुसलसल इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से, अपने बड़ों की तरफ से, अपनी सांसों, अपने जिस्म, हर पल पर, लम्हे लम्हे की तरफ से, अल्लाह मुझे नदामत और इस्तिग़फ़ार तुझे पसंद है, मुझे नदामत और इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा, क्योंकि ये तुझे पसंद है, तो कबूल फरमा, तो कबूल फरमा। तो जितना नदामत और इस्तिग़फ़ार उसकी बारगाह में होती जाएगी, उतना ज्यादा इंशाअल्लाह कबूलियत बढ़ती चली जाएगी। तो आज के बाद तरावी के दरमियान में क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? आज के बाद तरावी के दरमियान में क्या करेंगे? इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, इस्तिग़फ़ार को, और इंशाअल्लाह अल्लाह वो भी कबूल फरमाएंगे, अल्लाह पिछली भी कबूल फरमाएंगे, और आइंदा भी तौफीक की राहें खुली रहेंगी, तौफीक की राहें आइंदा भी खुली रहेंगी। इस दफा तस्बीह खाने में क़याम करने वाले और तस्बीह खाने में आने वालों के लिए बहुत ताकतवर रूहानी पैकेज है। अभी आपको कल एक पैकेज मिला, खजाना, 11 रातें मुसलसल इंशाअल्लाह उस पैकेज का अमल होगा, उस पैकेज का अमल होगा। और अभी 7 तारीख को, 7 रमजान को एक ताकतवर और पैकेज है, और उसमें एक खास अमल है। वो रमजान इंशाअल्लाह ताला वो एक कामयाबी का तावीज है। कदम कदम पे कामयाबी, सफरों में कामयाबी, जिंदगी में कामयाबी, जज्बों में कामयाबी, सोचों में हर कदम पे कामयाबी, कामयाबी, और सदियों से आजमुदा ये 7 रमजान को मंगल के दिन ये तोहफा, तो ये तोहफों की कदरदानी बढ़ती चली जाए। बाज़ औक़ात नेमतें और तोहफे ज्यादा होते हैं और इंसान कोई बेकदरी ना भी करे, थोड़ा सा बेकदरी का ख्याल भी आ जाए
थोड़ा सा बेकदरी का तस्वर भी आ जाए तो इंसान बहुत दूर निकल जाता है और नुकसान बहुत हो जाता है। बेकदरी ना हो जाए, अदब एहतराम अजमत, अदब एहतराम अजमत। अब आपके पास वो कल खजाना होगा कौड़ी का, करेंसी का, उसको हाथ में, दाएं हाथ में लेंगे और दाएं हाथ में लेके क्या पढ़ेंगे, या वासे हो या गनी हो। पूरी तवज्जो से, ऐ अल्लाह सारी वुसअत, सारी सच्ची राहें, सारी बरकतें तेरे पास हैं। ऐ अल्लाह तू अपने खजाने गैब से वुसअत भी दे दे, गिना भी दे दे, गनी भी कर दे, बरकत भी दे दे, राही भी दे दे और करम भी दे दे। तो पूरी तवज्जो से अल्लाह की तरफ ध्यान जमा के पढ़ेंगे, या वासे हो या गनी हो या वासे हो। या वासे हो या गनी हो। आमीन। छोटा सा अमल, थोड़ी देर का अमल, चंद लम्हों का अमल, इतना बड़ा मजमा, पूरी दुनिया में हमारे साथ बैठा मजमा, बेशुमार लोग मुखलिसीन, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल हैं। वो भी इस खजाने में, इस दौलत घर में शामिल हैं, वो भी इस खजाने में शामिल हैं। छोटा सा अमल है। अब हमारा कशकोल का अमल है, नहीं पहले तावीज का अमल है। हमारा रोजाना तावीज का अमल होता है और इसके बारे में फिर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अल्लाह पाक ने इन हरूफ की बरकत से, इन हरूफ की बरकत से सारे कुरान को मुज़य्यन फरमाया है। आज कुरान का हर्फ सा है और ये कुरान में 1405 मरतबा आया है, 1405 मरतबा आया है। इसके नक्श के अंदर जो अपनी हाजत लिखेंगे इंशाअल्लाह पूरी होगी। इसके अंदर अपनी हाजत लिखें, अपनी हाजत लिखें, अपना दर्द लिखें, अपना गम लिखें और दिल से लिखें और फिर इस तावीज को इलाहा करके बाहर मटके में डाल देंगे। मैंने अमल करना है और फिर दफन हो जाएगा। जमीन पाक में लिखना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह कबूल फरमाए। और हमारी जो बैरून मुल्क के हजरात हैं वो इसको, इस तावीज़ को इलादा करके आटे में गूंद के कहीं दरिया, नहर, समंदर, झील में डाल देंगे, चाहे इकट्ठा डाल देंगे या इलादा भी डाल सकते हैं। कशकोल का अमल है, बहुत बाबरकत सादतमंद कशकोल का अमल है। अपने कटोरे को हाथ में रखेंगे और इसके ऊपर 45 बार पढ़ेंगे, या कादिरो या नाफियो। पूरी उम्मत का तस्वर करके, अपना तस्वर करके, अपनी नस्लों का और मेरा, मेरी नस्लों, सारे निज़ाम का। और एक चीज खास तौर पे कि हमारी खिदमत वाले उसका तस्वर करके बहुत तवज्जो से खिदमत वालों का भी इसको पढ़ेंगे। या कादिरो, पढ़ना शुरू करें। आमीन। अल्लाह मुबारक करे, बाबरकत सआदतमंद हैं और इसको दिन में वक्तन फवक्तन 7 बार इसको अमल को करते रहा करें, वक्तन फवक्तन इस अमल को करते रहा करें। हाँ जी। तो इंशाल्लाह 7 तारीख को मंगल के दिन जो खास अमल होगा उसमें शिरकत करें और वो कामयाबी का एक खास तावीज़
कामयाबी जिंदगी में, बख्त कामयाबी, कदमों में कामयाबी, मंजिलों में कामयाबी, कारोबार में कामयाबी, हर जिंदगी की जॉब में कामयाबी, बहुत ताकतवर अमल है। और अर्ज किया था कि रूहानी मुशाहदे, तिब्बी, दम, कोई तावीज, कोई तिलिस्म, कोई अमल आपका आजमुदा हो, लिखें लिखें। 27 को इंशाअल्लाह उसकी कुरानदाजी होगी, 27 को उसकी कुरानदाजी होगी, वो जरूर लिखें इंशाअल्लाह ताला। और अपनी चीजों की खुद हिफाजत करें, कोई चीज खुली न रखें, कोई हमारी गफलत से गुनहगार ना हो जाए, खुद तवज्जो करें, ध्यान दें इसका। हाँ जी, अब हमारी मुजरिमाना हाजिरी है और इस अमल के लिए तवज्जो बहुत जरूरी है। इस अमल को जितना गर्क होके और जितना तवज्जो से, जितना दर्द से और जितना ध्यान से करेंगे, उतना ज्यादा अल्लाह की रहमतें, उसका करम और उसका फजल मुतवज्जे होगा। और ये वो ताकतवर लफ्ज हैं जो अभी पढ़ेंगे, इससे जंजीरें टूट जाती हैं, वो कर्जों की, वो मर्जों की, वो बीमारियों की, वो जादू जिन्नात बंदिशों असरात की, वो नाकामियों की जंजीरें टूट जाती हैं, जंजीरें टूट जाती हैं, टूट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा 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 बिस्मिका कहफ कितमीर। आमीन आमीन। या मुसब्बिबुल अस्बाब का अमल मुसलसल करते रहें। शाम के बाद किबला रुख खड़े होके, अगर मजबूरी है तो और बात है, बैठ के 11 तस्बीहां डूब के ध्यान से 21 दिन पढ़ें और फिर अगले 21 दिन की नियत भी कर लें, उससे अगले भी। बहुत ताकतवर अमल है, इसमें तस्बीह खाने का हिस्सा, मेरा हिस्सा जरूर रखें। इस अमल को हमेशा ध्यान से पढ़ें और पढ़ने वाले आज अगर ध्यान से तो कल उससे ज्यादा ध्यान हो, गिड़गिड़ाना हो, भिखारी बन के पढ़ना हो। अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा करता है, गैब से ऐसे असबाब पैदा करता है जहां इंसान का गुमान, ख्याल और तसव्वुर भी नहीं होता। गैब से अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करता है, रिस्क के, बख्त के, बरकत के, दौलत के, सेहत के, रिश्तों के, कामयाबियों के, अताओं के, करम के। गैब से अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करता है। दुआ करते हैं और अब अल्लाह से मांगते हैं, या अव्वल अव्वलीन व या आखिर आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन। अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा, मुश्किलें हल फरमा, आफियत अता फरमा, आफियत अता फरमा, आफियत अता फरमा, नाकामियां खत्म फरमा, बख्त बरकत रिस्क के दरवाजे खोल दे, नसीब अता और बख्शिश के दरवाजे खोल दे, रहमत 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 दे दे और बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन बिरहमतिका यार। अच्छा जी, आज एक टोटका तिब्बी और एक टोटका रूहानी इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। आज एक टोटका देता हूं बासी रोटी का। बासी रोटी, बासी रोटी, रोटी जितनी सख्त होगी, सख्त होगी और बासी होगी, मसोड़े और दांत मजबूत होंगे, आंतें और जिस्म उतने मजबूत होंगे। हाँ, नरम रोटियां खा खा के ऐसे आदी बने कि आप महसूस करें हमारे रोटियों के टुकड़ों के छाबे भरे जा रहे हैं, जबकि यह सेहत की दलील है, सेहत की दलील। बासी रोटी, एक वाक्य सुनाऊं आपको बासी रोटी पे और बचे हुए टुकड़ों पे। एक जगह मैं गया, मैं क्यों अपने अहबाब से कहता हूं कि आने वाले मजमे को हम रोटी सादा और कुशादा दें, सादा और कुशादा दें। एक जगह जाना हुआ, हमारे साथ एक पहलवान था सफर में, तो एक खानकाह में गए, उन्होंने कहा जी कि वहां रोजा खोलना है, वहां खाना मिल जाता है।
साहब मिले, कितने अभाव हैं आप? रमजान था। उसने कहा जी हम इतने हैं। अच्छा ठीक है, नमाज पढ़ के ना, नमाज से पहले यहां बैठ जाना। कोई दस्तरखान नहीं था, पांव के बल बैठ गए, आगे डब्बे रख दिए पानी के, एक एक खजूर दे दी, प्याली में शायद नमक भी पड़ा था चुटकी लेने के लिए, खजूर दे दी। देखो ये खजूर खा लो, पना, नमाज पढ़ना, नमाज के आधे घंटे तक नवाफिल पढ़ते रहना, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उसके बाद खाना है। अब हम खाने के लिए आए तो फिर कहा ये बरामदे में ऐसे बैठ जाओ। हम पांव के बल बैठे हैं, हाथ में एक एक रोटी थी, ज्यादा नहीं खाना, सोओगे तो फिर तुम ऐसे करोगे। एक रोटी, थोड़ी सी चने की दाल, सबको दे दी। पहलवान ने किए 2 लुकमे, मरे कि रोटी कहां से लाऊं, रोजा और सख्त गर्मी का रोजा और सफर का मारा हुआ, सफर का मारा हुआ। एक कमरा था, उस कमरे में डिशें डांगे जा रहे थे, वहां से कुछ रोटी के टुकड़े बचे हुए आए। एक डब्बा था लकड़ी का पुराना, उसमें सारे टुकड़े डाल रहे थे। पहलवान गया, झोली भर के ना वो रोटी के टुकड़े ले आया, झोली भर के, कि टुकड़ों से गुजारा हो जाएगा। उस बंदे ने कहा ओए तूने ये क्या किया, इधर लाओ, चलो ऐसा करो सबको बांटो। उसके हिस्से में फिर 2 टुकड़े। मैं एक जगह गया, एक पीर साहब थे, मुझे अपने पेट का फिक्र रहता है, बढ़ गया, उसका बहुत बढ़ा हुआ था। उसने कहा जी हमारे यहां सहरी की और इफ्तारी की तरतीब यह है, सहरी में हम एक बिस्किट देते हैं, एक चाय का कप देते हैं, और इफ्तारी में एक रोटी होती है और छोटा सा सालन होता है। हमारे यहां यह तरतीब है। मेरे ख्याल में आज से आपके भी तरतीब शुरू हो जाए, एक बिस्किट और एक चाय का कप। और शाम, और उस वक्त जब हम ये बैठे थे, सख्त गर्मी, 17 साढ़े 17 घंटे का रोजा था, और शाम को एक रोटी, बस थोड़ा सा सालन। कुछ जिंदगी के धक्के खाए हैं जानबूझ के, और एहसास हुआ है अल्लाह उसके हबीब के मेहमान को सादा और कुशादा खाना दो। यहां तो सादे से बढ़ के है, जहां पराठे बेबहा मिल रहे हों, खाने, दहियां, लहसुन, चाय, चीजें, तो वो तो सादगी खत्म हो गई, कुशादगी बाकी रह गई, कुशादगी रह गई है, सादगी तो खत्म हो गई है। क्या ख्याल है? जी भर के रोटी मिलती है, हैं? अल्लाह के ला रहा है। बासी रोटी को जिंदगी में शामिल करो, बासी रोटी को जिंदगी में शामिल करो। कभी भी जिंदगी में बीमारियां, अल्सर, मैदा, कब्ज, दिल की बीमारियां, जितना ज्यादा बासी रोटी को शामिल करेंगे और बचे हुए टुकड़े जिंदगी में शामिल करेंगे। एक बाबा जी थे, बुजुर्ग थे, वो बासी रोटी 2 दिरहम की देते थे, ताजा रोटी 1 दिरहम की देते थे। तो पूछा हजरत ये क्यों? फरमाया जितना हुजूर के दौर से हम दूर होते जाएंगे, बरकतें खत्म और कम होती जाएंगी। कल की रोटी को हुजूर का दौर की बरकत ज्यादा है, आज की रोटी को कम है, इसलिए कल की रोटी 2 दिरहम की देता हूं, आज की 1 दिरहम की देता हूं। तो बासी रोटी अपनी जिंदगी में शामिल करें, और बासी रोटी गिजा में, खाने में, इसको मामूल में बनाएं, और इसके टुकड़े, बल्कि हमारे खिदमत वाले हजरात एक छाबा जो शाम का बचा हुआ है साफ सुथरा करके, उसमें से अगर कुछ जली हुई चीजें हैं, कुछ नहीं, वो टुकड़े रख दिया करें बासी, जो उसमें से सुबह सहरी के वक्त बासी रोटी और दही, दही मिलती है। एक साहब रमजान में हमारे पास आए, दही की जो भी प्लेट हो उठा के पी ले, फिर प्लेट पी ली। 2 बंदे बैठे चुप करके देख रहे, कहने लगे बस मैं सिर्फ दही पीता हूं, कुछ भी नहीं खाता। फिर दही के प्लेट ऐसे रखे और पी ले, क्योंकि चबानी तो पड़ती नहीं, दही को चबाना तो पड़ता नहीं। हम इंशाअल्लाह सबका ख्याल रखेंगे, सबको लेके चलेंगे, सबका इकराम करेंगे, सबका इकराम करेंगे। बासी रोटी सेहत है, तंदुरुस्ती है, बहुत जबरदस्त सेहत है। तो बासी रोटी को इंशाअल्लाह आज के बाद हम पसंद करेंगे, और टुकड़े हमारे अहबाब रख दिया करें, एक जगह मखसूस हो
वहां छाबे में टुकड़े ढके हुए ना हो, सामने ऊपर किसी स्टूल में ऊपर की जगह में पड़े हो, जो आए उसमें से अदब से टुकड़े ले खा ले, अगर नहीं खाना चाहता तो ताजा रोटी होती है। तो मैंने तो आपको अर्ज किया, मेरी लंगर में अगर अल्लाह मुझे सादत देता है और मैं सादत लेता हूं तो अल्लाह के फजल से मेरी कोशिश है मैं टुकड़े लंगर के, पता नहीं किस वली, किस गौस, किस बाबरकत इंसान के बचे हुए हैं। इसको बहुत ज्यादा मामूलात में लाए। एक तिब्बी टोटका है, हिरोशिमा नागासाकी 1945 जंग अजीम दोम में एटम बम से पिघल गए, हर चीज खत्म हो गई, पिघल गई, पानी बन गया। वहां के एक साइंसदान की तहकीक है कि अगर हमारे जापानियों के बदन पर सुरमा मला हुआ होता, सुरमा, तो कभी भी हमें एटमी तापकारी, एटम बम का नुकसान न होता। सुरमा। इस वक्त हमारी फजाओं में तापकारी है, जहाज के धुएं से, फैक्ट्रियों के धुएं से और तापकारी आलात के इस्तेमाल से वगैरह वगैरह, हमारी फजाओं में, हवाओं में बहुत खतरनाक तापकारी चीजें हैं। तापकारी से मुराद जहरीला मवाद है। और जिस्म में जाहिर में सबसे नाजुक चीज आंख है। सबसे नाजुक चीज क्या है? आंख है। सबसे नाजुक आंख है, जाहिर में सबसे नाजुक आंख है। इस आंख को सुरमे का तहफ़्फ़ुज़ दें, इस आंख को सुरमे का तहफ़्फ़ुज़ दें। हमारी तिब में सुरमे के जरिए इलाज है, इलाज बिलकहल, सुरमे के जरिए इलाज। ये चीज करें, इसमें ये डालें, आंखों में डालें तो आंखों से फला बीमारी खत्म होगी। वैसे भी आप तजर्बा कर लें, आप सुरमा आंखों में डालें, नाक में से, मुंह में से जो थूक निकलती है या नाक से बलगम है, उसमें आपको सुरमा आंखों से नजर आएगा। डाला तो आंखों में था, निकला यहां से कहां से? तो अपनी जिंदगी में ये तिब्बी टोटका है। तिब्बी टोटका दूसरा बता रहा हूं, एक रूहानी भी बताता हूं, आज दो हो गए। जिंदगी में अपने दिन रात में आंख का टोटका यानी सुरमे को अपने मामूलात में शामिल करें। इससे पहले कहते थे इसमें लेड है। अब क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, हजूर की सुन्नत है, अब साइंस कहते हैं इसमें एंटी लेड भी है। एक टोटका रूहानी, एक टोटका रूहानी। आप सलाम को जिंदगी में शामिल करें, अपनी सांसों में शामिल करें, अपने लम्हों में शामिल करें सलाम। कभी बेख्याली में आप कहीं जा रहे हैं, सलाम नहीं कर सकते तो किसी को इल्जाम ना दें तो उसने मुझे सलाम नहीं किया। यह वाकया खुद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के साथ हुआ। उन्होंने किसी के सलाम का जवाब ही नहीं दिया, पता नहीं किस ख्याल में थे। बंदा बाज़ औक़ात किसी सोच में होता है। सलाम बहुत बड़ा रूहानी टोटका है, बहुत बड़ा रूहानी टोटका है, बहुत बड़ा। इसलिए फरमाया कि अगर महफिल में बहुत ज्यादा बंदे हों तो हाथ ना मिलाएं, सलाम करके बैठ जाए। बाज़ औक़ात बंदा हाथ आगे करे, आज की बात, मैं जा रहा, एक बंदे ने गाड़ी रोकते रोकते ऐसे हाथ किया, गाड़ी भी चला रहा, कह रहा मुझे हाथ मिला। अब मैं अगर नहीं मिला रहा, मैं जा रहा हूं, सलाम हो गया तो कहेगा मगरूर आदमी है, गरीबों से हाथ नहीं मिलाता, अमीरों से मिलाता है। शुक्र है खुद गाड़ी में बैठा हुआ था। तो सलाम एक बहुत बड़ा वजीफा है। फरिश्तों की नियत कर लें, जिन्नात की नियत कर लें, फरिश्तों की नियत कर लें, जिन्नात की नियत कर लें। सलाम एक बहुत बड़ा वजीफा है और इस वजीफे को अपनी जिंदगी में शामिल करें, सलाम को और एक जिंदगी में शामिल करें। बाज़ औक़ात आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है, जिंदगी में एक दफा कहा हुआ सलाम सारी जिंदगी का सरमाया बन जाता है। एक दफा कहा हुआ सलाम सारी जिंदगी का सरमाया बन जाता है। एक दफा कहा हुआ सलाम, आप किसी को कहें अस्सलामु अलैकुम, उसने कह दिया ना वालेकुम अस्सलाम, आप ऐसा सलाम के माने क्या कहते हैं? जा तुझ पे सलामती हो, तेरी आंखें सलामत, तेरे कान सलामत,
تیرا جگر، تیرے گردے، تیرا دل، تیری ہڈیاں، تیری صحت، تیری بول، تیری سوچیں، تیری سانسیں سلامت، تیرا رزق سلامت، تیری اولاد، گھر، مکان، زندگی سلامت سلامت سلامت۔ اصل میں سلام سے مراد اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے، یہ سلام سے مراد یہ ہے، اتنی بڑی دعا ہے۔ اگر وہ آگے کو پتہ نہیں کون ہے، اللہ کا کوئی ولی ہوگا، کوئی اللہ کا دوست ہوگا، بظاہر ہماری نظروں میں عام سا آدمی ہے، ہماری نظروں میں عام آدمی ہے، لیکن وہ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا نا وعلیکم السلام، یعنی دعا کے بدلے دعا دے دی، اور کیا پتا اس کی دعا ایسی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں رد ہی نہ ہوتی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ہیں جو قسم کھا لیں اللہ پوری کر دے گا، کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا لیں اللہ ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے ان کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ تو سلام بہت بڑا وظیفہ ہے، سلام بہت بڑی تسبیح ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور بہت بڑی تسبیح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد اس کو کوشش کریں گے۔ میں ایک جگہ گیا، ایک بندے نے مجھے ایک دفعہ سلام کیا، میں نے جواب دے دیا، اس کا ذہن تھا اونچا سلام کرے، پھر کیا، پھر مجھے کہنے لگا تو بڑا مغرور آدمی ہے، میں تجھے سلام کر رہا ہوں، جواب دے دیا۔ ساتھ والوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا، کہہ رہے مجھے سننا چاہیے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے بڑے سختی سے چھڑا، مجھے سننا چاہیے۔ تو سلام زندگی میں شامل کریں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ اپنے معمولات میں، اپنے چلنے پھرنے میں۔ اور سلام کا عمل کتنا طاقتور ہے کہ سلام کر کے قل واللہ پڑھیں۔ اچھا، یہیں سے اس کی مشق کر لیں، مستورات بھی، آپ بھی بیت الخلاء سے آئے حال میں سلام کیا، کھانے سے آئے یہاں سلام۔ آپ کا گھر یہ ہے نا، اس وقت یہ حال ہے نا، تو سمجھ لیں گھر آئے، ادھر سے نکلے سلام، نیچے سے آئے سلام قل واللہ، سلام قل واللہ، سلام قل واللہ۔ یہ مشق ہو گئی، یہ مشق پھر گھر کام آ جائے گی۔